بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل زنبیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں عشق ناکام کی کہانیاں لکھوں، یعنی ان مشہور لوگوں کے عشق کی داستان بیان کروں جو اپنے عشق میں ناکام ہوئے لیکن بہت نام کمایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان کی ناکامی پر شاعری ہوئی ہے، ان پر فلمیں بنائی گئی ہیں، مثلاً ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، وامق اسرا، شیریں فریاد وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عشق ان مشہور لوگوں کے عشق سے کسی طور کم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایسی قربانیاں دی کہ ان کی کہانیاں سن کر یہ یقین آ جاتا کہ یہ کمبخت عشق جو نہ کر دکھائے وہ کم ہے۔ میں ایسے ہی ایک آدمی کی کہانی لکھ رہا ہوں۔ یہ داستان سچی ہے اس لیے کہ میں خود اس کا گواہ ہوں۔ یہ پوری کہانی میرے سامنے ترتیب پائی ہے۔ فرحاد ایک لاابالی سا نوجوان تھا۔ کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت سے بہت پہلے بعض باتوں کا ادراک ہو جاتا ہے، جیسے اس کے والدین کو شاید یہ ادراک ہو گیا ہوگا اس نوجوان کو آگے چل کر فرحاد جیسا بننا ہے، اس لیے اس کا نام ہی انہوں نے فرحاد رکھ دیا تھا۔ اس کا مزاج باقول شخص سے لڑکپن سے عاشقانہ تھا، خوبصورتی سے اسے پیار تھا۔ وہ خود بھی انتہائی خوبصورت اور نوجوان تھا، اس کے ساتھ ہی وہ بے انتہا نفیس طبیعت کا تھا، صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا، سلیقے سے کاڑی ہوئی مانگ، صاف ستھرے ہاتھ اور پاؤں اور ہر وقت خوشبو میں بسا ہوا۔ فرحاد ایسا نوجوان تھا جس کے ساتھ چلتے ہوئے، جس سے باتیں کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ کچھ لوگوں میں ایک خاص کشش ہوا کرتی ہے، وہ بڑی آسانی سے کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ فرحاد بھی ایسا ہی تھا، اور کوئی تعجب نہیں تھا کہ محلے کی یا اس کے خاندان کی لڑکی اس پر مرتی ہو، لیکن اس نے کبھی اپنے عشق کی داستان مجھے نہیں سنائی تھی، جبکہ اس کے برعکس ایسے ویسے لوگ ایسی کہانیاں سنا کر بور کرتے رہتے ہیں۔ یار آج فلاں نے لفٹ دی، آج فلاں میرے ساتھ ہوٹل تک گئی، آج فلاں نے محبت بھرا خط لکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فرحاد نے اس قسم کی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ دوسروں کی ایسی باتیں سن کر صرف مسکرایا کرتا۔ میری اس سے اچھی خاصی دوستی تھی، بلکہ بے تکلفی تھی کہ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتا، لیکن عشق وغیرہ کی داستان میں نے اس سے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، یار تمہارا نام تو فرحاد ہے لیکن تم بغیر شیری کے گھومتے رہتے ہو، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ آصف بھائی، کس نے کہا کہ میری کوئی شیری نہیں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، میری بھی شیری ہے اور میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اوہو، کون ہے وہ شیری؟ وہ میری انا ہے، میری وہ محبت ہے جو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں۔ اس نے کہا، انسان کو چاہے کہ وہ پہلے اپنے آپ سے عشق کرنا سیکھ لے، اپنے آپ کو سنوارے، تراشے، اپنے آپ پر اپنا قیمتی وقت صرف کرے، اور جب یہ احساس ہو جائے کہ اس نے اپنے آپ کو کسی حد تک مکمل کر لیا ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ سوائے فرسٹریشن کے اور کچھ نہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں ایسی فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں۔ یار تمہارا فلسفہ ہے تو بہت اچھا، لیکن انسان مکمل کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو آخر تک نامکمل ہی رہتا ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ اس نے گردن ہلائی، اور یہی کمی اسے آگے اور آگے اور آگے لے جاتی رہتی ہے، وہ پھر کہیں رکتا نہیں ہے۔ اگر تمہارے فلسفے پر عمل کیا جائے تو پھر دنیا کا کوئی انسان بھی عشق نہ کرے۔ میں نے کہا، کیوں نہ کرے؟ لیکن عشق صرف کامیاب لوگوں کا حق ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر وہ کامیاب ہو چکا ہے تو پھر اسے ضرور عشق کر لینا چاہیے، کیوں نہ کہ اس کے بعد واقعی مکمل ہو جائے گا۔ تو ایسا تھا وہ نوجوان، اور ایسے تھے اس کے خیالات۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا فرد تھا۔ اس کے والدین کسی سرکاری محکمے میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے دو بڑے بھائی تھے جو اپنی تعلیمی مکمل کر کے اچھی ملازمت کر رہے تھے۔ ایک بہن تھی جو کسی اچھے خاندان میں بیاہ کر اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ اس کے پس منظر اس لیے بتانا ضروری تھا کہ اس کے ماحول اور اس کے گھر کو سمجھے بغیر اس کہانی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ ہر طرح ایک روشن خیال گھرانے کا ایسا بانکا فرد تھا جس کو ابھی تک کوئی لڑکی متاثر نہیں کر پائی تھی، اور وہ خود بھی ان جھنجھٹوں سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ ہماری اس سے تقریباً روزانہ ہی شام کے وقت ملاقات ہوا کرتی۔ ہمارے محلے میں ایک صاف ستھرا ہوٹل تھا جہاں ہم ہر شام کو بیٹھ جایا کرتے، اور دنیا بھر کی باتیں ہوا کرتی، ادب سے لے کر سیاست اور محبت سے لے کر مذہب تک۔ ہم چار دوست ایک حلقہ تھا، میں یعنی آصف، جمال، منور، حسن، سلیم اور فرحاد۔ ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کے خوبصورت پہلو سے عشق تھا۔ ہم یوٹوپیا کے خواب دیکھا کرتے اور غم دورہ کو غم جانا میں شامل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک شام وہ ہوٹل نہیں آ سکا تھا۔ ہم بہت دیر تک اس کا انتظار کر کے اٹھنے ہی والے تھے کہ وہ آ گیا۔ اس وقت اس کی کیفیت کچھ مختلف ہو رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی۔ ہم نے اس پر اس وقت دھیان دیا جب وہ کچھ کھویا کھویا سا محسوس ہونے لگا۔ صاف لگتا تھا کہ وہ باتیں ہم سے کر رہا ہے لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ کیا بات ہے پیارے، آج کہاں کھوئے کھوئے؟ منور نے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک جیبنی سی مسکراہٹ تھی۔ کہیں نہیں، مجھے کہاں کھونا ہے، میں تو تم لوگوں کے آس پاس ہی ہوں۔ اس نے اپنے طور پر اطمینان دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کچھ دال میں کال
काला दिखाई दे रहा था। एक शाम जब मैं और वो एक जगह बैठे थे तो मैंने उससे पूछ लिया, मेरे यार अब तो साफ साफ बता दे, मैं तुझ में एक तब्दीली देख रहा हूँ, आखिर क्या हुआ है तेरे साथ। बड़ी मुश्किलों से उसने बता दिया, आसिफ भाई मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। ये बात हुई ना, मैं लहक उठा। मैं तो पहले ही समझ रहा था कि कोई ना कोई कहानी जरूर है। अब ये भी बता दो कि कौन है वो, क्या नाम है उसका। उसका नाम काजल है, उसने बताया। काजल खूबसूरत नाम है, मैंने कहा, और वो खुद भी खूबसूरत है, फरहाद ने कहा। अब मैं ये नहीं जानता कि औरों के नजदीक खूबसूरती क्या मफहूम हो सकता है, लेकिन मेरे नजदीक खूबसूरत वो है जो आपको अपनी तरफ खींच ले, जिसमें आप कशिश महसूस करे। तुम्हारी ये तारीफ तो बिल्कुल सही है, मैंने कहा, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारा फलसफा क्या हुआ। तुम तो इस जज्बे के कायल ही नहीं थे, दूर भागते थे, किसी को अपने करीब नहीं आने देते थे। अब किस तरह ये सब हो गया है, ये मैं नहीं जानता। उसने कहा, तुम ठीक कहते थे भाई, इस जज्बे में बेपनाह ताकत होती है, ये अपनी तरफ खींच कर मजबूर कर दिया करता है, जिस तरह मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं नहीं जानता कि इस लम्हे में क्या तासीर थी, जो लम्हा मुझे उसके पास उस तरह उड़ाकर ले गया जैसे सूखे पत्ते को हवा उड़ाकर ले जाती है। और वो रहती कहाँ है, क्या जोग्राफिया है उसका, ये मत पूछो। उसने एक गहरी सांस ली। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि एक दिन सिर्फ तुम ही को बता दूं, क्यों न कि दूसरे मेरे इस जज्बे और इस मजबूरी को समझ नहीं पाएंगे। मैं उससे पूछता रहा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसका कहना था कि वो अभी अपनी इस मोहब्बत को राज ही रखना चाहता है। अब वो अक्सर शाम को गायब रहने लगा था। कहाँ जाता था, क्या करता था, ये हम में से किसी को नहीं मालूम था, लेकिन जब भी मिलता उसमें एक तब्दीली महसूस हुआ करती थी। वैसे तो वो बहुत गैर महसूस की तब्दीली थी, लेकिन मेरी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकी थी। कुछ जरूर था जो आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा था। एक शाम में घर वापस आने के लिए रक्षा टैक्सी का इंतजार में खड़ा था कि पता चला कि शहर में अचानक कोई गड़बड़ हो गई और ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल सकती। अजीब परेशानी थी, अब इतनी दूर घर पैदल भी नहीं जा सकता था। क्या शहर है, क्या हालात होते जा रहे हैं, जरा सी देर में कुछ से कुछ हो जाता था। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि गोलियां चलने की आवाज आने लगी। फायरिंग कहीं करीब ही हो रही थी। मैंने कुछ लोगों को देखा जो अपनी जाने बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसी वक्त अचानक एक टैक्सी मेरे पास आकर रुक गई। उस पे पहले से 2 आदमी बैठे थे। ड्राइवर कोई नेक इंसान था कि उस बेचारे ने मुझे परेशान खड़ा देखकर टैक्सी रोक ली थी। किसी तरफ जाना है साहब, टैक्सी वाले ने दरियाफ्त किया। भाई मुझे गुलशन की तरफ जाना है, मैंने बताया। बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, आओ जल्दी से बैठ जाओ। उन दोनों को 3 हट्टी उतार कर किसी तरह तुम्हें गुलशन पहुँचा दूंगा। उस वक्त किसी किस्म के सवाल जवाब का मौका ही नहीं था। मैं जल्दी से पिछली सीट पर एक आदमी के बराबर बैठ गया, जबकि दूसरा आगे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। उस वक्त मैंने गौर किया तो मुझे एक झटका सा लगा। वो दोनों हिजड़े थे। दोनों ने बहुत खूबसूरत और भड़कदार लिबास पहन रखा था। दोनों के चेहरे मेकअप ज़दा। बहरहाल वो जो भी हो, उस वक्त वो सब मुझे इसलिए अच्छे लग रहे थे कि उनकी वजह से मैं एक टैक्सी में बैठा हुआ घर की तरफ जा रहा था। हाय बाबू साहब, हंगामे में घर से क्यों निकल आए? एक ने तालियां बजाते हुए पूछा। ये हंगामा तो अचानक हुआ है, मैंने बताया। मैं जिस वक्त निकला था उस वक्त तो कुछ नहीं था। हाँ, यहाँ ऐसे ही होता है, आग लगे कमबख्तों को, आगे वाले ने कहा। जरा जरा सी बात पर तूफान खड़ा कर देते हैं। इंसानी जिंदगी की तो कोई अहमियत ही नहीं रही है, जिसको चाह मार कर चले गए। टैक्सी वाला बहुत होशियारी से हंगामों वाले मकामात से बचाता हुआ टैक्सी निकाल कर ले जा रहा था। कुछ देर बाद हम 3 हट्टी पहुँच गए। फिर पुल के नीचे एक कच्ची आबादी थी। उन दोनों का कयाम उस आबादी में था, और जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि आगे के हालात और खतरनाक हो चुके हैं। जगह जगह हंगामे हो रहे थे, गोलियां चल रही थी। उस वक्त टैक्सी वाले ने भी आगे जाने से इनकार कर दिया था। नहीं भाईजान, अब मैं यहीं से वापस हो जाऊंगा, मुझे आगे नहीं जाना। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैंने परेशान होकर पूछा। उस वक्त उनमें से एक हिजड़े ने कहा, बाबू क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो, आज रात यहीं हमारे साथ रह जाओ, हालात ठीक हो जाएंगे तो घर चले जाना। उनकी पेशकश तो अच्छी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हिजड़ों के घर में एक रात कैसे गुजार सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर उनमें से एक ने कहा, आय हाय, अब इतना सोच विचार किस लिए, जान बचाना फर्ज है, जान बचा लो और हम तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे, एक रात के लिए मेहमान रखेंगे, सुबह उठकर चले जाना। उसने ऐसी बात कर दी थी कि मैंने यही मुनासिब समझा कि इनकी पेशकश कबूल कर ली जाए, और वैसे भी रास्ता तो था नहीं, मैं जाता तो कहाँ जाता। उन्हीं दोनों ने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और वो चला गया। फिर वो मुझे एक छोटे से घर में ले आए। ये एक कच्चा मकान था जिसमें एक बड़ा सा आंगन था, और उस आंगन में एक तख्त बिछा हुआ था। उस तख्त पर कोई बैठा हुआ था। घर में रोशनी हो रही थी। मैं तख्त पर बैठी हुई लड़की को देखकर हैरान रह गया था। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने बहुत सलीके
तरीके का लिबास पहन रखा था, दुबली पतली गोरी और बहुत खूबसूरत, दिलों में उतर जाने वाली आंखें। मैं तो उस लड़की ही समझा था, लेकिन जब उसने तालियां बजाकर बात की तो समझ में आ गया कि वो भी हिजड़ा ही था। आय हाय, ये तुम लोग किस मेहमान को ले आए हो? काजल, ये बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे, एक ने बताया। हम इसीलिए अपने साथ लेकर आए हैं, आगे हंगामे हो रहे हैं ना। ओहो, फिर तो ये एक रात के मेहमान हुए ना, काजल ने कहा। उनकी खूब खातिर करना, कोई तकलीफ ना हो। मैं तो चली अपने पिया के पास। काजल तख्त से उतरकर अंदर कमरे में चला गया। बहुत ही हैरान कर देने वाला माहौल था। उसने कहा था कि वो अपने पिया के पास जा रही है। खुदा जाने कौन था उसका पिया जो मुझे अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने मेरे सामने खाना लाकर रख दिया था। मुझे हिचकिचाते देखकर उनमें से एक ने कहा, बाबू बेफिक्र होकर खा लो, ये बहुत हलाल की कमाई का खाना है। मुझे भी अब थोड़ा मजाक सूझ गया था। इंसान की यही फितरत होती है, जरा सा राहत मिले तो फिर उसके अंदर का संजीदा और गैर संजीदा इंसान जाग उठता है। एक बात बताओ, मैंने पूछा, तुम लोग तो नाच गाकर पैसे कमाते हो, फिर ये रिस्क हलाल कहाँ से हुआ? नहीं बाबू, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। दूसरे ने बताया, हम काजल के सहागने हैं, हम सब मजदूरी करते हैं। काजल बहुत बड़ी कारीगर है, इतनी बड़ी मिस्त्री है कि कुछ ना पूछो, बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है और हम दोनों उसके साथ होते हैं। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। और ये पिया कौन है जिसके पास तुम्हारी काजल गई हुई है? हाय हाय, अब क्या सब कुछ एक ही सांस में पूछ लोगे? एक ने कहा, फिर भी अपने तजस्सुस के लिए पूछ रहा हूँ। प्रेमलता, एक ने दूसरे से कहा, बाबूजी को अपनी काजल की पिया जी से मिलवा दो, वरना बेचारे को रात भर नींद नहीं आएगी, बेचैन होता रहेगा। प्रेमलता ने मेरा हाथ थाम लिया। आओ मेरे साथ, लेकिन कुछ बोलना नहीं, चुपचाप देखते रहना। वो मुझे इस कोठरी के पश्त पर ले आया जिस कोठरी में काजल गया हुआ था। पीछे की तरफ एक खिड़की थी जिसमें सलाखें लगी हुई थी। प्रेमलता मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए बताया कि मैं खिड़की से झांक कर देख लूं। मैंने खिड़की से झांका और लरस कर रह गया। उस कमरे के दरमियान में एक बड़ी सी जयनमाज बिछी हुई थी और काजल सजदे में गिरा हुआ था। पूरे कमरे में अल्लाह अल्लाह की आवाजें गूंज रही थी। काजल सजदे में गिरा हुआ विर्द किए जा रहा था और उसकी आवाज में बला का सोज था, जैसे कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। मेरे खुदा, ये क्या थी ये काजल? प्रेमलता ने मुझे इशारा किया कि मैं वहाँ से हट जाऊं। मैं उसके साथ आंगन में आ गया। उस वक्त मेरी कैफियत ऐसी हो रही थी कि मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। मैंने वो रात एक कुर्ब में गुजारी थी। मेरे खुदा, काजल का क्या रुतबा है? कौन था वो मोहब्बत और इबादत के किस दर्जे पर था? मैं रात भर यही सोचता रहा। दूसरी सुबह एक और हैरत मेरे इंतजार में थी। शायद मुझे नींद देर से आई थी, इसलिए मैं बहुत देर तक सोता रहा था। मेरा बिस्तर इसी आंगन की तख्त पर बिछा दिया गया था और जब आँख खुली तो मेरा दोस्त फरहाद मेरे सामने खड़ा था। शायद मुझे इतनी हैरत नहीं हुई होगी जितनी हैरत उसे हो रही थी। आसिफ भाई, आप यहाँ कहाँ? उसने पूछा। मैं तो यहाँ एक मजबूरी की हालत में आया हूँ, मैंने बताया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। उसने कहा, क्यों? वो मेरे पास ही बैठ गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इश्क हो गया है और जिससे इश्क हुआ है उसका नाम काजल है और शायद उससे तुम्हारी मुलाकात भी हो चुकी है। हाँ, मैंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी काजल से मेरी मुलाकात हो चुकी है। अगर मैंने जो कुछ देखा है वो नहीं देखा होता तो शायद तुमको लानत मलामत करता, लेकिन सब कुछ देखने के बाद दिल चाह रहा है कि तुमको इस इश्क की मुबारकबाद दूं, बशर्तिया कि तुमने काजल को अपनी मंजिल समझ लिया हो और तुम्हारा इश्क सच्चा हो। आसिफ भाई, अब इससे ज्यादा सच्चाई और क्या होगी कि मैं बस इसी का होकर रह गया हूँ। इस दौरान काजल भी कमरे से बाहर आ गया। उस वक्त उसका हुस्न देखने के काबिल था। उसका चेहरा दमक रहा था और मुझे एहसास हो गया था कि उसके चेहरे की ये दमक उसके अंदर की रोशनी की वजह से है, वो रोशनी जो उसकी रूह के पाकीज़गी की कहानी सुना रही थी। उसको देखकर मैंने अपनी गर्दन अकीदत से झुका ली थी। मेहमान, रात में तुम आराम से तो सोए थे ना? काजल ने पूछा। जी हाँ, बहुत आराम और सुकून से सोया हूँ। मैंने कहा, मेहमान, अपने इस दोस्त से कहो कि मेरा पीछा ना किया करे। काजल ने कहा, उसने एक गुनाहगार में ऐसी कौन सी बात देख ली कि अपना होश गंवा बैठा है? काजल के पास है क्या? सिर्फ चंद दिखावे के सजदे ही तो है। मैंने अपनी मंजिल आप ही को बना लिया है। फरहाद लरसती हुई आवाज में बोला, ये मेरा इश्क है और इश्क में ये नहीं देखा जाता कि किसके पास क्या है और क्या नहीं है। बहुत मुश्किल है। काजल ने अपनी गर्दन हिलाई। इश्क का मतलब समझता है? इसका मतलब होता है कि महबूब के रंग में रंग जाना। क्या तू मेरे रंग में अपने आप को रंगने के लिए तैयार है? हाँ, हर लम्हे, हर वक्त। फरहाद ने कहा, मैंने कुछ सोच कर ही इस राह में कदम रखा है, तो फिर हो जा हमारी तरह, ये समझे कि हो गया हूँ। ये सब कुछ जो कि मेरे सामने हुआ था, इसलिए मैं ऐसे अनोखे इश्क का गवाह हूँ। कहाँ फरहाद जैसा बांका सजीला नौजवान और कहाँ काजल एक मुखन्निस, लेकिन नहीं, वो तो कुछ और था, किसी और दुनिया की मखलूक। ना जाने वो कितने नाम निहार पीरों फकीरों और अलमाए 100 पर भारी था। ना जाने वो किस मंजिल का राही था। ना जाने वो अपने
सजदों में कितनी लज्जत महसूस करता होगा, खुदा के नजदीक उसका रुतबा कितना बुलंद होगा। और वो कोई आम इंसान नहीं था, वो फरहाद उसका आशिक भी कोई आम इश्क नहीं था। ना जाने काजल ने किस कैफियत में उस पर निगाह डाली होगी कि उसकी दुनिया ही बदल कर रह गई थी। मैं बहुत ही हैरत अंगेज तजुर्बात लेकर उस मकान से वापस आया था। फरहाद वहीं रह गया था। उसने कहा था कि वो बाद में आएगा, लेकिन वो नहीं आया, बाद में भी नहीं आया। उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब उसे तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं था। मैंने उसके घर वालों को, बल्कि किसी को भी इस मकान का, काजल और फरहाद के बारे में कुछ नहीं बताया। न जाने क्यों उसमें मेरे किसी इरादे का दखल नहीं था, बस मेरी जुबान पर जैसे मोहर सी लग गई थी। एक शाम में अकेला, किसी को बताए बगैर, तीन हट्टी के उस मकान की तरफ चला गया जहाँ मैंने काजल और उसके साथियों को देखा था और जहाँ आखिरी बार फरहाद से मुलाकात हुई थी। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि वो लोग बहुत पहले मकान खाली करके जा चुके हैं। कहाँ, ये कोई नहीं जानता। उसके बाद फरहाद का कोई पता नहीं चला। वो बहुत दिनों बाद, शायद 4-5 बरसों के बाद, फरहाद मुझे मिल गया, शहर से बहुत दूर एक छोटी सी आबादी में, जहाँ मैं अपने किसी दोस्त के साथ उसके किसी रिश्तेदार के पास गया हुआ था। फरहाद मुझे उस मोहल्ले में मिला था। अब वो कुछ और हो चुका था। खूबसूरत तो वो पहले से था, लेकिन अब उसके जनाना रंग रूप ने उसे और हसीन कर दिया था। वो एक ठेला लिए सब्जियां फरोख्त कर रहा था, बिल्कुल वही अंदाज जो ख्वाजा सराओं का हुआ करता था। तालियां बजा बजा कर उसने औरतों वाले फूलदार कपड़े पहन रखे थे। फरहाद को उस रूप में देखकर मैं दंग रह गया था। उस बांके सजीले नौजवान का क्या हशर हुआ था। मैं उसके पास नहीं गया, दूर से देखता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देखकर शर्मिंदा हो जाएगा। मैं उसकी शर्मिंदगी के ख्याल से उसके पास नहीं गया। फिर मैंने एक हैरत अंगेज बात देखी। गर्चा वहाँ और भी सब्जी वाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा रश उसके पास हो रहा था। मर्द और औरतें उसके ठेले के पास आकर उसे अदब सलाम करते और उससे खरीदारी करके आगे चले जाते। मैंने चाय देने वाले को इशारे से अपने पास बुलाया। भाई, एक बात तो बताओ, ये बंदा जो सब्जियां बेच रहा है, ये कौन है? इसका नाम काजल है साहब, इसने बताया। काजल? मैं चौंक गया था। उसका नाम काजल है? जी साहब, ये पहले जिसके साथ रहता था, असल में उसका नाम काजल था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद अब खुद इसने अपना नाम काजल रख लिया है। तो क्या ये इसी इलाके में रहता है? जी साहब, और उससे पूरे इलाके में ये काजल साहब कहकर पुकारा जाता है। कमाल है भाई। बाबू साहब, आप इसके सामने वाली हालात पर न जाएं। ये इस दौर का वली है, ऐसा अल्लाह वाला आदमी है, शायद पूरे मुल्क में कोई और नहीं मिलेगा। इसने ना जाने कितनों की दुनिया बदल कर रख दी है। ना जाने कितने बदमाश, गुंडे और मवाली इसकी वजह से सीधे रास्ते पर आ गए हैं। मैं हैरत, फख्र और अजीब किस्म के एहसास के साथ इस शख्स की बातें सुन रहा था, जो ये बता रहा था कि वो पूरा इलाका काजल साहब से अकीदत रखता है। और ये काजल साहब कौन थे? कल का फरहाद, जिसने कभी किसी लड़की से इश्क नहीं किया। उसका ये कहना था कि इस किस्म का इश्क इसे अपने मियार से कमतर मालूम होता है। और उसका मियार क्या था? उसे एक हिजड़े ने उसे आसमान तक पहुंचा दिया। उसने फरहाद को काजल बना दिया। ये पनाफी अल शेख की कहानी है। ना जाने किस रूप में कैसे लोग होते हैं। काजल एक मुखन्निस था, लेकिन उसने फरहाद की जिंदगी बदल दी। उसे अपने आप में जज्ब करके अपने ही जैसा बना दिया। उसके इश्क को नाकाम बनाकर अपने रंग चढ़ा दिया। क्यों ना कि काजल ने अपने खुदा से इश्क किया था, फरहाद ने काजल से, फिर काजल दरमियान से हट गया और फरहाद अपने अल्लाह का होकर रह गया। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक का ये सफर मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन मैंने फरहाद से मुलाकात नहीं की, लेकिन उसके बाद जब मैं उससे मिलने पहुंचा तो मोहल्ले वालों ने बताया कि वो लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ, ये किसी को नहीं मालूम था। इश्क नाकाम नंबर के लिए ये कहानी किसी मशहूर आदमी की कहानी नहीं है, लेकिन ये मशक की कहानी जरूर है। इश्क जो मुआजिज़े दिखाता है और ना जाने कहां से कहां ले जाता है। काश हमें भी मशक करने का सलीका आ सके। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।